So hello everyone, this is Sambhav here and you are watching ASJ. So we are going to solve this problem. This problem involves the concepts, very beautiful concepts. I would say that these concepts are involved from chapter of matrices, and even we must know complex numbers. Okay, so this is a very beautiful problem that was asked in JEE Advanced 2011. ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको इसमें एक थोड़ा बहुत पीएनसी जैसा भी फील आ रहा होगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालनी है। So we are going to try to solve this problem. Let us try to understand what the problem statement is, and then I'll explain you the basic concepts that will be involved in solving this problem. Okay, we will solve it using an easier approach. Let us see how we can go. So this is the problem here, that let omega equal to 1 be a cube root of unity. So we must know the concept of cube root of unity. So first of all, I'll just recall that concept. What is cube root of unity? Okay, so I'll just recall what is cube root of unity. So we know that x cube equal to 1, x cube minus 1 is equal to 0, implies x minus 1 times x square plus x plus 1 equal to 0. This means that x square plus x plus 1 equal to 0. So जब हम रियल वर्ल्ड में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई रूट नहीं आता है, तो वी से नो रियल रूट because इसका discriminant is negative. But in actual scenario, when we talk about the imaginary world, like in complex world, complex plane, we know that its two roots are omega and omega square. And for details, you can refer to your books or you can refer to some other material. We are not going to go much into these details. Just I would like to add some properties, that since x cube minus 1 is equal to 0 is the polynomial, or I must say the equation that is satisfying the roots are 1 omega and omega square, so I can say that the sum of roots. See, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, क्यूब रूट या nth रूट ऑफ यूनिटी, इसमें बेसिकली यही चीजें लग रही होती हैं कि सम ऑफ रूट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, हाउ डू वी अप्रोच दैट. So that is the thing that you must understand, and that is why I'm stressing about this concept rather than solving this problem, because this everybody knows that 1 plus omega square 0 है तो वो हम लगा सकते हैं, ओमेगा क्यूब 1 है तो वो हम लगा सकते हैं. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग कि वो आया कहाँ से बिफोर मूविंग टू द दैट कॉन्सेप्ट ओनली. सो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट हैं, तो हमें पता है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर हम इसको देखें किसी भी जनरल क्यूबिक के लिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के लिए बात करें, तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बिकॉज क्यूबिक है तो इसके मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं, दैट इज माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, पर हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, implies that this 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर becomes 0. सिमिलरली अगर मैं अल्फा बीटा गामा के लिए बात करूं तो वो माइनस डी बाई ए होता है फॉर अ क्यूबिक, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है दैट बिकम्स माइनस 1, सो माइनस ऑफ -1, so 1 into omega square, that is omega cube, is equal to -1 upon a, that is 1. So these two things we are going to use. I just illustrated them. I just wish to convey the concept, just because क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ से आता है, and then they mug up these things and they don't understand the beauty behind these concepts. From where are these concepts coming? ठीक है, I'll not go into much details about cube root of unity further. I'll just solve this problem. So another thing is that we have been given that omega is a cube root of unity and S is a set of non-singular matrices. So what is meant by non-singular matrix? So a non-singular matrix implies that the determinant of this matrix, for example, if A is non-singular matrix, then determinant of A is not equal to 0. This is a very simple thing and you guys must understand how we approach that. Great. Now what do we need? We need non-singular matrix where A, B and C can be either omega or omega square. So our small a, small b and small c can be either omega or omega square. That means ये हमारे इस सेट से
कहीं ना कहीं आएंगे, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच आर नॉन सिंगुलर, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन द सेट एज दैट इज अ सिंपल थिंग टू डू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है। तो I'll just evaluate this determinant that we have been this matrix. For this matrix I'll just evaluate the determinant. So this is omega 1c and omega square omega and 1. Okay, I'll check for the conditions what will this determinant become. Before any conclusion, I have to move to get the determinant. So एक तरीका है कि आप इसे directly मतलब transformations लगा के करें and make this thing. और another thing is कि आप simply add up करें and then try to do things. ठीक है, I'll just do the other way because I found that much to be that one to be simpler when we are solving this problem. So this becomes 1 minus c omega minus a times of omega minus c omega square plus b times of omega square minus omega square, जिसका मतलब है this becomes 1 minus of a plus c times of omega plus ac times of omega square. ठीक है, तो अब हमें क्या चेक करना है कि a और c की किन वैल्यूज के लिए, ठीक है, ए और सी की अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से ए और सी की कौन सी वैल्यूज लें सो दैट यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये नॉन जीरो बना रहे, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि किन एक्सप्रेशंस के लिए ये वाली वैल्यू जीरो हो रही है और किन वाली के लिए नॉन जीरो हो रही है, ठीक है। अगर ए और सी है तो वी डोंट नीड काउंटिंग, वी कैन सिंपली डू इट। आई मीन वी डोंट नीड टू यूज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड बिफोर मूविंग फर्दर इज यहाँ पर कि ये जो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन आया, तो दिस डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, यानी कि बी का कोई फंक्शन नहीं है। जस्ट टू इंश्योर दैट यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये बी का फंक्शन नहीं है, यानी कि ये बी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दिस डिटर्मिनेंट डिपेंड्स ओनली ऑन ए एंड सी, ठीक है। सो दिस डजंट डिपेंड ऑन बी implies that we can take any value of b omega over omega square no matter whatever you take. This is entirely not required, you can actually take any value. So for b we can have two options available to us, okay, this is one thing. Now I have to check for this expression. So this is 1 minus a plus c times of omega plus ac times of omega square, ठीक है। सो आई हैव टू चेक फॉर दिस एक्सप्रेशन कि ये कब कब जीरो हो रहा है। सो सिंस हमारे पास दो ही टर्म्स हैं तो वी कैन जस्ट सिंपली डू वन थिंग दैट वी पुट ए एंड सी। ओके, सो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज, अगर मैं सी को ओमेगा रख दूं और ए को एक बार ओमेगा और एक बार ओमेगा स्क्वायर रख दूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है। आई विल चेक फॉर द डिटर्मिनेंट, आई विल राइट डिटर्मिनेंट, दिस इज माय डिटर्मिनेंट एक्सप्रेशन। एंड वंस मैं इसको इसको मैं अब ओमेगा स्क्वायर रख देता हूं तो यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। देखो ओमेगा ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो वी आर श्योर कि इसके चार ही कॉम्बिनेशन होंगे। और ये कैसे पता चला, आप देख लीजिए, ए के लिए हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, सो टू वेज, एंड सी के लिए भी ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, सो वी हैव टू वेज, सो 2 into 2 is 4. So simple as that we arrive at this expression. Now let us try to evaluate what is this value, ठीक है। सो अगर हम ए और सी को ओमेगा और ओमेगा रख दें तो व्हाट विल बी अवर फाइनल एक्सप्रेशन, इट विल बी 1 minus a plus c is 2 omega times of omega plus what is a into c, this is omega square times of omega square, ठीक है। सो दिस विल बी 1 minus 2 omega square plus omega की पावर 4. what is omega की पावर 4, it is definitely equal to omega only, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता है कि 1 minus 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन रहा है। और एक और बात हमें ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा को अपन माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दिस बिकम्स -3 ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो यानी कि यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है -3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा सब्सटीट्यूट करेंगे। सो आई विल जस्ट क्लियर स्पेस फॉर this thing, okay, I'll just clear some space
बिफोर मूविंग फर्दर आई कैन जस्ट क्लियर दिस स्पेस। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्हेन वी पुट दिस, ओके, वी पुट a एज ओमेगा स्क्वायर एंड c एज ओमेगा, ठीक है। बेसिकली हम अगर इतना भी कर दें, या इनमें से एक यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाए और ऐसे आ जाए, तो वी कैन एक्चुअली इवेल्युएट, बट यस आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। वी आर गोइंग टू कीप दिस थिंग्स सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। और मुझे क्या पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना वैल्यू देगा, -1 देगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। तो यहाँ पर 1 प्लस, इसको हम -1 टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है 0। सो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाली चीज का एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर 0 हो गया, तो हमारा डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा, ये हमारा काउंट होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। देखो अब यहाँ पर ये ए सी का वैल्यू, जहां जहां ओमेगा क्यूब आ रहा है और ए प्लस सी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है, तब उस वाले सिनेरियो में हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही होने वाला है। तो वी आर क्वाइट श्योर अबाउट इट, ठीक है। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें ओमेगा क्यूब दे देगा, यहाँ पर सेम वही चीज बनेगी, बस और कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो दिस विल कैंसल आउट एंड दिस विल आल्सो गिव मी 0 एज माय आंसर। For the next one, let me just evaluate for the final expression. So what is our final expression? Before moving ahead, we're going to evaluate for the fourth one as well. So this is 1 minus omega square plus omega square will be 2 omega square times of omega plus what is AC. So this is omega ki power 4 times of omega square. So this is omega ki power 6, that is 1 only. Omega cube is 1, so omega cube ka square will be 1. And similarly we have omega 2 omega square times omega, that is 2 omega cube. So this is simple as that, we get 0 again. So this also yields us 0. Okay, so for A and C we have only one possibility, that they have to be certainly omega and omega. For B we have two options available. Okay, so for B we have two options available. So now let us check this counting. We can use the simple counting principle over here. Okay, I know that A has to be certainly omega, C has to be certainly omega, B can be omega or omega square. I have to check for distinct matrices. How can I do it? I can do it. I can choose A, B and C. So for the limited, how many number of combinations do they yield? So B yields us two combinations, A yields us one combination and C yields us one combination. So accordingly we know that this answer is going to be 2. ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं थी। वी कैन सर्टनली जज कि अगर हम ए और सी को दोनों को ओमेगा ही रख सकते हैं, सो वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी इन दैट। और बी के लिए हम ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, तो एक बार हम ओमेगा रख देंगे और एक बार ओमेगा स्क्वायर रख देंगे। सो वी आर गोइंग टू गेट ओनली टू पॉसिबिलिटीज। सो यस, ए ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, नॉट इन द पर्सपेक्टिव दैट वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, but because we know that this is a first of all it is a linked within the chapters, linked chapters, और आपको कई लोगों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का चीजें नहीं पता होती, तो दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट एज वेल। एंड बाकी दिस प्रॉब्लम वाज नॉट अ डिफिकल्ट वन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट इज गिवन एंड यू हैव टू अप्लाई, ठीक है। द थिंग इज द स्टूडेंट्स डोंट try to solve the problem, they just think कि this seems to be very difficult because आपके पास बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो this seems to be difficult, but actually it isn't. It is a very simple problem and you can simply see from this expression. So that was all from this video, guys. I hope that you understood this video and you understood the concepts that were involved. Thank you everyone for watching this video and I'll see you in the next video. Have a great time with ASJ. Keep solving, keep learning. Thank you everyone and bye.